Hello, this is Professor Rita Paude, lecturer at NIT Polytechnic Nagpur for the Department of Electronics and Telecommunication. Today, I am going to deliver a lecture on basics of electronic communication. And in this lecture, I will discuss about transmission mode and noise. After the completion of this course, students should be able to state the different types of transmission mode, explain each system with example, define noise and describe prominent source of electrical noise. In the last lecture, we have studied about what is communication, what are the different types of signal, how transmitter and receiver works in the block diagram of communication system, and what is electromagnetic spectrum and different frequency ranges for it. Start with this transmission mode. What is transmission mode? Transmission, it is nothing but sharing the information between two devices, and this transmission mode classified into three different steps, that is simplex system, half duplex system and full duplex system. Based on whether the given communication system communicates only in one direction or in both directions, the communication system can be classified as simplex system, half duplex system and full duplex system. Let's start with the first, that is simplex system. Here the given diagram shows three different devices, out of which one is the keyboard, second one is the CPU and third one is the monitor. Here the information is transferred from one device to another, but the direction of the flow of information is for the single one. That is, only keyboard can transmit the information towards the CPU, and from CPU information is transmitted towards the monitor. But it is not possible to transmit the information from monitor to CPU. मीन्स आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट कर रहे हो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब आप लोग उसको बैकवर्ड साइड में उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर आपके पास दो ब्लॉक है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो आप लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमीटर से सिर्फ रिसीवर तक भेज सकते हो, और ऐसे सिस्टम को कहा जाता है सिंप्लेक्स सिस्टम. We'll explain with the proper definition such as the system in which information can be transmitted only in one direction. Such system is known as the simplex system. मतलब सिंपली ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा. रिसीवर उसको कोई भी प्रकार का रिप्लाई ट्रांसमीटर को नहीं दे सकता. ऐसे सिस्टम को बोलेंगे क्या? सिंप्लेक्स सिस्टम. इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सच एज रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम. जैसे जो भी डिस्प्ले पे आप लोग टीवी में इमेजेस देख सकते हो, उस इमेजेस को आप दूसरे जगह पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते. आप लोगों को जो भी डिस्प्ले आ रहा है आप लोग उसको रिसीव कर सकते हो, देख सकते हो, बट आप उसको रिप्लाई दे सकते हो क्या? नहीं. इसीलिए टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इट इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर सिंप्लेक्स सिस्टम. नेक्स्ट वन इज हाफ डुप्लेक्स सिस्टम. हियर द पिक्चर शोज block A and the block B. Block A, it is nothing but your transmitter, and block B, it is nothing but your receiver. Here the arrow shows that block A sending the information and block B receiving the information, while in another example block A is the receiver and block B is the sender. मतलब क्या हुआ?
अपने पास कौन कौन थे, एक तो ट्रांसमीटर था और दूसरा रिसीवर था। पहले डायग्राम में ये दिखा रहा है कि ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है किसके पास, रिसीवर के पास। और सेकेंड डायग्राम में वही दिख रहा है कि आप लोगों ने ब्लॉक्स के नाम चेंज कर दिए। यहाँ पे ये सेंडर था तो यहाँ पे बी को सेंडर किया है, और यहाँ पे ए रिसीवर है तो यहाँ पे बी रिसीवर था, बराबर है। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन एक बार ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जा रही है और फ्रॉम रिसीवर टू ट्रांसमीटर आ रही, बट ये दोनों भी प्रोसीजर जो है वो अगर एट ए टाइम नहीं हो रही है, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे अपन हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिस हाफ डुप्लेक्स सिस्टम इज ऑलवेज बाय डायरेक्शनल इन नेचर। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ए से बी तक भी जा रही है और तुरंत बी से ए तक भी आ रही है, मतलब दोनों डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा क्या, बाय डायरेक्शनल इन नेचर। देन सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि डेफिनेशन के तौर पे अगर इसको बोला जाएगा तो उनको अपन कहेंगे द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड, इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव बट नॉट साइमल्टेनियसली। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ए इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है बी को, बी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है ए को, बट दोनों की प्रोसीजर एट ए टाइम हो रही क्या, नहीं, सेम दिया हुआ है बट नॉट साइमल्टेनियसली, ऐसे प्रोसीजर को कहा जाएगा क्या, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। फॉर द एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, सभी लोगों को वॉकी टॉकी पता है, जो पुलिस ऑफिसर्स के पास रहता है वॉकी टॉकी, वो लोग जो भी कोई भी ट्रबल में अगर रहते हैं वो तुरंत अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला अगर ऑनलाइन रहेगा तो ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलती, बट वो इन्फॉर्मेशन तुरंत नहीं मिलती। जैसे इसने बात की और तुरंत उसने जवाब दिया, ऐसा होता है क्या, कुछ टाइम के बाद वो सिग्नल मिलते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को सेंड किया जाता है। ऐसे सिस्टम को बोलेंगे अपन क्या, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट इज फुल डुप्लेक्स सिस्टम। सो व्हाट इज फुल डुप्लेक्स सिस्टम? Here one of the diagram we can see, that is in this diagram block A it is nothing but your receiver and block B it is nothing but your sender. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन A से B तक भी जा रही और B से A तक भी जा रही। इसके लिए अपन ने दूसरा डायग्राम निकाला क्या, नहीं, एक ही ऐसे दो डिवाइस है जहाँ पे एट ए टाइम A से B तक भी जा रहा है और B से A तक भी जा रहा है। मतलब जो भी सिस्टम हो रही है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की एट ए टाइम हो रही है, इसीलिए ऐसे सिस्टम को बोला जाता क्या, फुल डुप्लेक्स सिस्टम। क्लियर एवरीवन? सो दिस सिस्टम आल्सो इन बाय डायरेक्शनल नेचर। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं, ए से बी तक, बी से ए तक, मतलब दोनों सिस्टम क्या हो रही है, एट ए टाइम हो रही है, बराबर है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही। जैसे ए से बी तक गया तुरंत बी ने ए तक जवाब दिया। ऐसे सिस्टम को बोलेंगे अपन फुल डुप्लेक्स सिस्टम, जो कि बाय डायरेक्शनल होती है। सो डेफिनेशन अगर लिखने के लिए बोला तो क्या लिखोगे, लिखना है द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा था, एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट रिसेप्शन नहीं हो रहा था, बट फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों सिस्टम एट ए टाइम वर्क करेगी, इसीलिए इसको बोला जाता क्या, फुल डुप्लेक्स सिस्टम। एग्जाम्पल में लिखेंगे अपन मोबाइल फ़ोन। सभी को पता है, सभी लोग यहाँ बैठे हुए सभी लोग अपना अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो। आप लोगों ने जैसे किसी को कॉल लगाया, आपने जो बात कही उसका वो तुरंत जवाब देते, पता है आप लोगों को, उसी सिस्टम को बोलेंगे अपन फुल डुप्लेक्स सिस्टम। हियर द नॉइस, नेक्स्ट पार्ट इज नॉइस। सो व्हाट इज नॉइस? अभी सभी को नॉइस जो वर्ड है वो सभी को सुना सुना लग रहा होगा, बराबर है। तो नॉइस मतलब क्या है, जैसे मेरे को लग रहा है नॉइस, किसी ने मेरे कान में आके जोर से आवाज की तो मैं बोलूंगी क्या, चिल्लाओ मत, दूर हो जा, ऐसे बोलूंगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉइस। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो नॉइस है उसको क्या बोलते हैं, देखो
तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनवांटेड सिग्नल, जो मुझे नहीं चाहिए, अनवांटेड सिग्नल विच अफेक्ट्स वांटेड सिग्नल। जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जा रहा था उसको अगर डिस्टर्ब कर रहा है कोई आके, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉइस। मतलब वो मुझे चाहिए था क्या, नहीं, बट वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसीलिए उसको बोला है अनवांटेड सिग्नल विच अफेक्ट्स द वांटेड सिग्नल इज कॉल्ड एज अ नॉइस। प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे उसकी। इट इज एन अनवांटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। It is an unwanted electrical disturbances which given rise to audible or visual disturbances in communication system। क्या लिखना है, It is an unwanted electrical disturbances which given rise to audible or visual disturbances in communication system। अभी ये नॉइस कितने टाइप के होते हैं और ये नॉइस कहाँ से जनरेट होके सिग्नल में ऐड होता है, ये अपने को देखना है। इसीलिए नेक्स्ट पार्ट है सोर्सेस ऑफ नॉइस। सोर्सेस ऑफ नॉइस। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है नॉइस दिया हुआ है और नॉइस के 2 डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से वन है इंटरनल नॉइस एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। अगर आप लोग टाइप से जज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी प्रोसीजर है वो कितने डिवाइस में हो रही है, 2 डिवाइस में। तो डिवाइस में अगर खराबी है या फिर डिवाइस के जो इंटरनल कंपोनेंट है उसके वजह से अगर ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर तक नहीं जा रहे हैं तो ऐसे नॉइस को बोलेंगे क्या, इंटरनल नॉइस। और वही अगर आउटसाइडर से कोई अनवांटेड मटेरियल जनरेट किया जा रहा है और उसमें सिग्नल में ऐड कर रहे हैं, मतलब अपने को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको बोलोगे क्या अपन, एक्सटर्नल नॉइस। क्लियर एवरीवन? सो तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इंटरनल नॉइस ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सभी लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का गेम देखा है, बराबर है। कैसे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होके एक दूसरे से करंट पास करते हैं और एक रीजन से दूसरे रीजन में जाके जो करंट फ्लो होता है, उसी तरीके से यहाँ पे बोला है अगर कुछ रैंडम मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, किसमें, इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऐसे नॉइस को क्या बोलोगे, इंटरनल नॉइस। अगर मैंने कुछ जैसे मैंने आप लोगों को बताया इंटरनल डिवाइसेस में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसके कारण जो नॉइस क्रिएट हो रहा है उसको बोलोगे क्या, इंटरनल नॉइस। वही अगर आप एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल नॉइस कम्स फ्रॉम द सोर्सेस। ऐसे सोर्सेस से आता है जिसके ऊपर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मतलब मैं अगर बोलूँगी किसी को अरे भाई आवाज़ कम करो, तो मेरे अगर कहने से वहाँ की आवाज़ कम होती थी तो उसको नॉइज बोला ही नहीं जाता था, क्योंकि पूरा अपने कंट्रोल में रहता था। मुझे कम करना है, ज़्यादा करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी, राइट। तो ये जो इंटरनल नॉइस है इसके छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स हैं। वन इज द थर्मल नॉइस, शॉर्ट नॉइस, ट्रांजिट टाइम नॉइस, वेयर द एक्सटर्नल नॉइस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक मैन-मेड नॉइस, नेचुरल नॉइस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस। इसमें एटमॉस्फेरिक नॉइस भी आता है, जैसे कि कोई भी एटमॉस्फेयर में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं और आप लोग डिवाइस में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से जो सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उसको अपन एटमॉस्फेरिक नॉइस भी बोल सकते। देखते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। सो हियर द एक्सटर्नल नॉइस, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्सटर्नल नॉइस कैसे जनरेट होता है। whatever it may be the noise generated because of externally added devices or what are the sound at the outside of the device, that is called as a external noise. So this external noise having the 3 different parts like atmospheric noise, extraterrestrial noise, man-made noise. So let's come towards the atmospheric noise. The noise are originated
किससे जनरेट होता है? देखो, दिस नॉइस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पटरिंग, क्रैकिंग, लाउड स्पीकर्स ऑफ रेडियो इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक नॉइज। आप लोगों के फटाके की आवाज़ आपको पता है, आजू बाजू में अगर आप लोगों के घर के बाजू में अगर काम चालू और टाइल्स की कटने की आवाज़ आ रही है ज़ोर से और आप लोग किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, मतलब वो एक्सटर्नली नॉइस ऐड हो रहा है, जबकि अपन उनको बोल भी नहीं सकते कि भाई आवाज़ कम करो, मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। ऐसा बोल सकते हैं अपन? नहीं, मतलब अपना कोई लिमिटेशंस है, कंट्रोल है उस पर? नहीं। इसीलिए एटमॉस्फेरिक नॉइस इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉइस। देन जाएंगे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइस पे। ये नॉइस कहाँ से जनरेट होता है? तो फ्रॉम द सन एंड आउटर स्पेस इज नोन एज द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइस। ऐसा नॉइस जो स्पेस में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, जैसे सन के रेज हो या फिर कोई आउटर स्पेस से आ रहा हो, तो ऐसे नॉइस को बोलेंगे क्या? एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइस। देन कम टूवर्ड्स द मैन मेड नॉइस। अभी तुरंत यहाँ पे नेम में ही मैन मेड है, मतलब खुद इंसान ने जो क्रिएट किया हुआ नॉइस रहेगा उसको अपन बोलेंगे क्या? मैन मेड नॉइस, जो कि जनरेट होगा ड्यू टू मेक एंड ब्रेक प्रोसेस इन अ करंट कैरिंग सर्किट। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सटर्नल नॉइस। लेट्स कम टूवर्ड्स द नॉइस। सो व्हाट इज इंटरनल नॉइस? हियर द नॉइज जनरेटेड विद इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मूवमेंट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो ऐसे नॉइज को बोलोगे क्या? इंटरनल नॉइज। जैसे कि कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने कंपोनेंट से बना हुआ रहता है? रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऐसे डिफरेंट डिवाइसेस से, कंपोनेंट से बना हुआ रहता है। अभी अगर ऐसे कंपोनेंट में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अपने जो सिग्नल जनरेट हो रहे थे वो ओरिजिनल फॉर्म में हो गए क्या? नहीं। तो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉइस। सो एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर है, उससे अपन देख सकते। देयर इज अ मैन हु इज बिजी विथ हिज वर्क। इन द सराउंडिंग ऑफ हिम lot many of devices are there which are nothing but your electronic devices. When he is busy with his work, all the devices are ringing. All the devices are ringing. Some devices are ringing, some devices are beeping, some is giving buzzing. So he is getting disturbed. He is getting disturbed and he trying to solve this problem. But all the devices are created internally in this surrounding device. All the problems are created internally in the surrounding device. अभी उसको क्या करना पड़ेगा? वन बाय वन करना पड़ेगा। मतलब वो अपने काम में जो बिजी था वो हो रहा है क्या? नहीं। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ये इंटरनली डिवाइसेस में प्रॉब्लम आ रहे थे, इसके कारण इसको इस डायग्राम से शो हो रहा है कि इंटरनल नॉइस कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा है नॉइस जो कि अनवांटेड सिग्नल है, वांटेड सिग्नल में अगर ऐड हो रहा है तो अपना सिग्नल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। इसके मेनली कितने पार्ट्स है? दो पार्ट्स। वन इज द एक्सटर्नल नॉइस, सेकेंड वन इज द इंटरनल नॉइस। दिस इंटरनल नॉइस may be divided into three parts: thermal noise, short noise और transit time noise। thermal noise मतलब क्या? अगर कोई भी डिवाइसेस के टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रहे हैं तो उसके कारण जो सिग्नल जनरेट हो रही थी और वो ओरिजिनल फॉर्म में रिसीवर तक नहीं जा रही, तो उसको बोलोगे क्या? थर्मल नॉइस। ऐसे ही थे शॉर्ट नॉइस और ट्रांजिट। सो दिस लेक्चर समराइज एज द what is transmission mode? What are the different types of transmission mode? We have also seen difference between simplex, half duplex and full duplex system. Then what is noise? Everyone knows about it. What are the different types of noise? Thank you everyone for this lecture. In the next lecture we will study about signal to noise ratio and synchronous and asynchronous transmission. Thank you very much.